Hello students, welcome to my new video. In the last video I had already explained about the principles of scientific management which was given by Frederick Taylor. After that we also did what were the principles which was given by Frederick Taylor, right? So this we completed. Now Frederick Taylor is also known as the father of scientific management. Okay, he is also known as the father of scientific management. Then after this, we are now supposed to start with techniques of principles of scientific management. That means what? If you remember, we had, if you can recollect 1 minute, I'll just show you the slide once again. In the previous slide, yes, see in this we had already discussed that whatever work is given, one of the principles of scientific management says that you need to do a job analysis. तो जॉब एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी आपको काम करवाना है ओके उसको लोअर कॉस्ट पे एकदम अच्छे से विद गुड क्वालिटी एंड विद फास्ट एंड विद मोर यू कैन से स्पीडीली काम कैसे करा सकते और वो भी लोअर कॉस्ट के साथ ओके तो वो पहले आपको देखना होगा उसके लिए आपको पहले जो भी आपका काम है उसको पहले एनालाइज कीजिए ओके उसके साथ ही साथ students you also need to do a time study, a motion study and fatigue study. Okay, this was related to the employees. ठीक है, एक होता है जॉब एनालिसिस जो वर्कर्स जो काम से रिलेटेड होता है और एक होता है जो आपके वर्कर्स जो ये काम करने वाले हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ स्टडी आपको करनी होगी ओके विच इज नोन एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिक स्टडी. मैंने तभी आपको ये इन द लास्ट स्लाइड आई हैड इन द लास्ट लेक्चर आई हैड टोल्ड यू that I will be explaining these 3 points, okay, these 3 concepts in the coming answer. So now we are going to go to that answer, that is techniques of principles of scientific management. दो अलग अलग हैं students, there are 2 different things. एक है scientific management के principles given by Frederick Taylor and the other is techniques of principles of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक्स है या साइंटिफिक मैनेजमेंट करते वक्त आप क्या क्या टूल्स या क्या क्या टेक्निक्स आप यूज करेंगे टू डू साइंटिफिक मैनेजमेंट ओके सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो जॉब एनालिसिस वाला पार्ट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ओके ना हाउ इज दिस आस्क्ड लेट मी फर्स्ट टेल यू दिस. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, ये हर एक जो है दिस कैन कम फॉर 2 मार्क्स. खास करके डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी एंड टाइम स्टडी ये दोनों जो है वो 2 मार्क्स के लिए दे आस्क इन एग्जाम ओके बोर्ड एग्जाम में. अदरवाइज ऑल्सो 1 मार्क के लिए दे कैन आस्क व्हाट इज टाइम स्टडी और व्हाट इज मोशन स्टडी, इस तरह से पूछा जा सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज टाइम स्टडी. टाइम स्टडी मीन्स साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन for time required to complete certain part of task. इसका क्या मतलब हुआ कि what is time study? You study how much time will be taken to complete a particular task. That is what is time study. Okay, how much, see students don't get this confused. Okay, what happens is many a time students what do they write, how much time workers take to complete a work, वो नहीं है ओके. हाउ मच टाइम शुड और हाउ मच टाइम विल बी टेकन फॉर द वर्क टू गेट कंप्लीट, मतलब ऑन एन एवरेज ये काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वर्कर्स कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे वो नहीं, कितना टाइम लगना चाहिए ये काम कंप्लीट करना, दैट इज व्हाट इज टाइम स्टडी. Okay, so time study means scientific study being done for time required to complete certain part of task. That is what is time study. Whatever time is decided to finish this work is normal circumstances is called standard time. तो वो जो आपका जो आपके पास वो टाइम स्टडी करने के बाद आपको जो टाइम मिलेगा ओके हाँ दिस पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगेगा.
normal circumstances में. Okay, so that is what is called as the standard time. Now what does Taylor say? As per Taylor, our task should be finished in prescribed time and its careful study is time study. है ना, आप बता रहे हो कि प्रिस्क्राइब टाइम आपको देना है वर्कर्स को अगर आप नहीं बोलोगे कि नहीं आपको ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, अगर आप इस तरह से कोई टारगेट या कोई टाइम पीरियड नहीं दोगे तो वर्कर्स तो पूरा दिन एक ही काम लगा करने में लगा देंगे. ओके, तो इससे तो आपका रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है. तो इफ यू डोंट वांट दिस देन व्हाट यू आर सपोज टू डू एज पर टेलर इज सेइंग, पहले तो आप टाइम पहले खुद देखिए कि कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा. ओके, और उस हिसाब से आप वर्कर्स को बताइए कि ये काम कंप्लीट आपका इतने टाइम में हो जाना चाहिए. ओके, आपको पहले ये देखना है, स्टडी करना है कि ये काम कितने टाइम है. डोंट गिव देम जस्ट एनी टारगेट एनी टाइम पीरियड विदाउट इवन पहले तो खुद को देखना पड़ेगा ना कि इतने टाइम पीरियड में ये काम होना चाहिए, काम होगा या नहीं होगा पूरा. वो आपका वो देखने के पहले ही आपने बस बोल दिया ऐसी कि ये टाइम मुझे 1 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता. सो फर्स्ट यू हैव टू डू टाइम स्टडी. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट. So first what do? You do a time study in order to understand how much time will be required to complete the work, and accordingly you have to give that prescribed time to the workers. Second is you do motion study. Motion study is basically a method of removing wastage of resources due to unnecessary and unproductive movement of man and material. ओके, देखो क्या होता है, मेनी टाइम्स कंटिन्यूअसली वर्कर्स काम नहीं कर सकते. ठीक है, यू नीड टू गिव देम सम ब्रेक बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी फैटिक मतलब बोर्डम या टायरिंग. काम भी एकदम ऐसा एक आप कंटिन्यूअसली यू कैन नॉट जस्ट वर्क. तो आपको ये स्टडी भी करनी है कि भाई कितने टाइम पीरियड के बाद देयर विल बी फैटिक इन द वर्कर्स, there will be boredom among workers, and what should be done so that how much break should be given to the workers so that there is no fatigue, there is no boredom. क्योंकि जैसे ही boredom आएगा काम करते वक्त वर्कर्स को, जैसे ही वो टायर्ड हो जाएंगे तो they will get उनका जो फोकस है वो काम में से निकल जाएगा, फिर वो थोड़ा काम स्लो कर देंगे या फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट करेंगे, यहाँ वहां थोड़ा चले जाएंगे, अभी आते हैं थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेके आ रहे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये दिस इज व्हाट दे विल डू. ओके, सो दिस शुड नॉट बी देयर. ओके, तो अगर आपको ये नहीं, क्योंकि इससे भी आपका जो टाइम जो है दैट विल गेट वेस्टेड, द मटेरियल देयर विल बी वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आल्सो. सो फॉर दैट फर्स्ट यू डू अ फैटिग स्टडी. ओके, जनरली क्या होता है 5 घंटे की या 6 घंटे की शिफ्ट होती है वर्कर्स की, या इवन जो एम्प्लॉइज है अगर उनको भी अगर हम 6-7 घंटे का काम देते हैं तो बीच में ब्रेक होता है ना, either there is some break at around 11 o'clock, then they have a lunch break, then they have some tea break. तो ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है. If you don't give this break and you expect them to just keep on working, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो उनका काम पे इफेक्ट आएगा and that will be also negative effect. Okay, so that is what is motion study. So what does motion study say? Motion study means method of removing wastage of resources, okay, due to unnecessary and unproductive movement of man and material. Means find out ways in which unproductive काम ना हो, unnecessary movement of man ना हो, material ना हो. If careful study is made when worker is doing movement in the time of working, then industrial fatigue of worker can be removed by removing wrong process of movement and productivity can be increased. तो unproductive movement जो है, unnecessary movement of workers को निकालने के लिए you need to also keep a watch on them. Main object of motion study is to find out a method which results in minimum wastage of a worker and its implementation. समझ में आ गया? तो मोशन स्टडी इज बेसिकली जो मोशन दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ वर्कर्स है ना, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, उसको कंट्रोल करना. ओके, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको वेज फाइंड आउट करने होंगे. उसमें से वन ऑफ द वेज इज व्हाट दैट यू एक्चुअली फाइंड आउट, गिव देम सम ब्रेक इन बिटवीन.
so that there is no fatigue in them, they don't feel bored, they don't get tired. Okay, थोड़ा break देना चाहिए. So that is what is motion study. The last is, these are the three basic techniques of doing scientific management. Okay, principles of scientific management को implement करते वक्त ये techniques आप use करोगे. अभी third वाला जो है, that is differential wage rate study. Differential wage rate study, the study itself says that wages should be related directly to the work of the to the performance of the workers. How the workers are doing the work. Workers जिस हिसाब से काम कर रहे, जैसा परफॉर्म कर रहे, उस हिसाब से wages मिलने चाहिए. Okay, differential wage rate system means wages given through wage related motivation based on time of work to workers. Each worker working in a factory have different work efficiency, है ना, बराबर है. हर कोई एक जैसा काम नहीं कर सकता है. क्लास में जो है इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो हर कोई 90% नहीं ला सकता है ना. को उसी हिसाब से जो काम करते हैं लोग, सो एवरीबडी आर नॉट दैट एफिशिएंट. Some are more efficiency, some are more efficient, some are fast learners, some are slow learners, वैसे. Considering this fact, efficient workers should get more wages, and workers having less efficiency should get lower wages in terms of production. Considering this fact, Frederick Taylor has given differential wage rates. Differential word का मतलब ही हुआ different wage rates. Okay, according to the performance of the workers. So efficient workers should be paid more and less efficient workers should be paid less. This is not a negative way ना. तुम लोग फिर तुम बोलोगे कि अरे मैडम ये तो नेगेटिव वे से नहीं फिर वर्कर्स रिएक्ट करेंगे, लेस एफिशिएंट होंगे, उनको थोड़ा मतलब नेगेटिव लगेगा, उनको दे भी फील कि अरे हमको तो ज्यादा वेजेस मिल ही नहीं रहे हैं ना. ऐसा नहीं होगा. देखो जो अच्छा काम कर रहे हैं अगर हम उसको बढ़ावा ना दे तो उनका भी काम कम हो जाएगा. Their performance will also have. So you have to give them good wages. और जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे उनको मोटिवेट करने के लिए they will feel motivated thinking कि ओके अगर ये इतना काम करके इसको इतने वेजेस मिल सकते तो मुझे भी उतना वेजेस मिल सकते अगर मैं अपना परफॉर्मेंस उतना बढ़ाऊं तो. Okay, so that is what is differential wage rate study. Okay, so students, have you understood this? Now there are three techniques of scientific management. How is this question asked? This is not going to be asked in 3 marker. ऐसे एकदम से पूरा 3 marks में नहीं आता है, अलग अलग आएगा. ठीक है, generally differential wage rate system comes for 2 marks. Motion study का meaning and time study का meaning दोनों they come for 1 mark. Okay, that means you just have to write the meaning. So time study, once again I am repeating, students don't get confused. Time study is the time taken to complete a particular work. In how much time workers complete the work, वो time study नहीं है. Don't get confused. वो कितना टाइम दे रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने टाइम पीरियड में एक काम कंप्लीट हो सकता है वो स्टैंडर्ड टाइम. That is what is time study. Motion study is a study to find out ways in which you can remove the unnecessary movement of workers and men and material. And differential wage study says that according to the performance of the workers, they should be paid the wages. That means more efficient workers should be paid more and less efficient workers should be paid less wages. Okay, so here we completed techniques or principles of scientific management. So if you see students, we completed actually in principles of management, scientific management, we completed the principles of scientific management. Then what are the principles, what are its features, पहला वो किया, फिर हमने ये किया कि scientific management के कौन कौन से principles है, और उसके बाद हमने किया टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, एक मिनट. हाँ, ये किया हमने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसके पहले हमने किया था व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, मतलब व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से. एंड दिस इज गिवन बाय फ्रेडरिक टेलर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, चलो.
इसके आगे हम करेंगे अभी now we move on to a very important one more author who has given the general principles of management, which is given by Henry Fayol. He is also known as the father of general management. ठीक है, Frederick Taylor is known as the father of scientific management. Henry Fayol is known as the father of general management. ठीक है, and there is one more, Peter Drucker. He is known as the father of modern management. ये तीन लोगों का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आपको इस चैप्टर में भी आपको पढ़ना है. तो सबसे अभी हम पहले करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल. इनके इनके जो 14 प्रिंसिपल्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिलहाल जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक इंडस्ट्रियल यूनिट में ओके एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त व्हाट आर द पार्ट्स इन विच दैट इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड वो पहले दिया गया है. और उसके बाद फॉर अ कॉर्पोरेट what are the principles of management given that is given by Henry Fayol. 14 principles are given by him, वो हम करेंगे. ठीक है, तो Henry Fayol was a French engineer and industrialist who presented his principles of management in his book Industrial and General Management. मतलब he has given principles of management both for industry as well as for general, that means for companies. He divided administrative principles of industrial unit in 6 parts which are as follows. Okay, what has he done? पहले तो कोई उसने पहले तो दोनों segregate कर दिए. Okay, he kept one principles are those principles which are for the industrial unit and the other is for the companies. Okay, now industrial unit को administrate करने के लिए बड़ा सा industry है. Okay, तो उसको इंडस्ट्रियल यूनिट को एडमिनिस्टर करने के लिए उसको गवर्न करने के लिए ही हैज डिवाइडेड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इनटू 6 डिविजन्स. टेक्निकल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सेफ्टी एक्टिविटीज, अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज. ओके, एक इंडस्ट्रियल यूनिट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, नाउ फर्स्ट इज टेक्निकल एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स, अच्छा ये कैसे पूछा जाएगा? This can come for 2 marks wherein they will ask you, suppose, what are the administrative principles of an industrial unit given by Henry Fayol. Okay, or principles of industrial unit given by Henry Fayol, or in which parts the in which parts industrial unit can be divided as per Henry Fayol. Sorry. एज पर हेनरी फ्योल. तो 6 है यहाँ पे. आपको अगर 2 मार्क्स में आता है, जनरली ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो यू कैन राइट ऑल 6, यू नीड नॉट एक्सप्लेन देम. ठीक है, सिर्फ ये जो 6 है उसको एनलिस्ट कर दीजिए. लेकिन अगर सपोज ये 3 मार्क्स में आता है सपोज, देन यू हैव टू राइट दिस होल आंसर. ओके, तो उस हिसाब से दिया गया है. सबसे पहला है टेक्निकल एक्टिविटीज. सो व्हाट डज अ इंडस्ट्री इंक्लूड? मेनली तो उसमें टेक्निकल एक्टिविटीज मतलब मशीन से रिलेटेड एक्टिविटीज. तो इसमें क्या ये डिपार्टमेंट क्या देखेगा? सो टेक्निकल डिपार्टमेंट या टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है इट विल लुक इनटू द फैक्ट्री मशीनरीज and all the activities related to production will be looked by the technical activities. Then comes commercial activities. कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन के लिए जो भी परचेज करना है रॉ मटेरियल्स एंड ऑल उसको देखना, उसके लिए पैसे इकट्ठा होगा कैसे होंगे, यहाँ पे किस तरह से परचेज करेंगे वो. ओके, सो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक परचेजिंग, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स. देन कम्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज. फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब ये जो भी हमें परचेज करने हैं रॉ मटेरियल्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए जो कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है, सो हाउ एंड फ्रॉम वेयर कैन बी प्रोक्योर दैट कैपिटल. ओके, एंड हाउ इट इज बीइंग इन्वेस्टेड, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, किस तरह से एलोकेट होगा, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी. सो इट इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल, फंड मेंटेनेंस, reinvestment. Okay, that way. Then comes safety activities.
सेफ्टी एक्टिविटीज में यू नीड टू, दिस इज सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज योर असेट्स एंड योर रॉ मटेरियल्स। ओके, इसके लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है बड़ी इंडस्ट्री में, जहाँ पे हाउ कैन सेफली यू कैन टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, असेट्स, रॉ मटेरियल्स, दैट वे. So it includes safety of employees, safety of assets and safety of goods, that is raw materials. Then definitely अगर पैसे कलेक्ट किए हैं, परचेज सेल्स किया है, तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट तो देना पड़ेगा. So you have a accounting activity. What is their work? Their work is to make financial statements, okay, and procuring necessary statistical analysis, मतलब एनालाइज करना कि किस तरह से इंडस्ट्री चल रही है. And the last is management activities. Definitely there are in industrial units also, there are workers, there are officers, there are engineers. Okay, so their job is to, that includes planning, organization, directing, coordination and control activities. Okay, क्योंकि हम लोगों से काम करवाएंगे, लोगों के साथ डील करेंगे, so हमें मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी. So that includes planning, organizing, directing, coordination, controlling activities. So with this, what we have done is, here we have actually divided the industrial unit into 6 parts. सिर्फ एक इंडस्ट्रियल बिजनेस है तो, इंडस्ट्री है तो, ओके. तो फिर हम, हेनरी फ्यूल हैज सेड दैट यू कैन, फॉर टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट मोर इजी, ओके, you can divide the industrial unit into 6 parts. ओके, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर है तो फिर हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, बस इसमें इतना कुछ है नहीं, इसमें आपको ये सिर्फ 6 पॉइंट्स जो है, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सेफ्टी, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, ठीक है, इतना ही याद रखना है. इसका एक्सप्लेनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है. Okay, now we will move on to the Henry Fayol's 14 principles of management. Now, if you see students, I have not explained all of them because इसका direct explanation textbook में है और बहुत easy language में है. Okay, and if you see over here, there are certain principles which are in bold, है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात, 14 principles of management will not be asked in 5 marker. As it is, this is not a 5 marker chapter. सबसे पहले. Secondly, 14 principles of management पे ये किस तरह से पूछा जाता है? तो ये कुछ जो principles है ये बार बार पूछे गए for 2 marks. ओके, या तो फिर 1 mark में कुछ meaning पूछा ऐसे. But there are certain principles which are important. ओके, तो वो जो ज़्यादा important है वही मैंने यहाँ पे bold में आपको bold करके रखे है. That means these are the principles which are very important and they keep on asking in the exams. Okay, तो इसमें क्या होगा, आपको ये 2 marks में पूछे जाते हैं. Okay, how is this asked? It's not a 3 marker, it's not a 5 marker, 2 या 1 mark में पूछा जाएगा. 14 principles of management given by Henry Fayol. Now what has he done? He is saying that for managing a company, a big organization, okay, there are certain principles which can be followed so that there is smooth working of the organization, and these principles he has divided into 14 parts. उसमें से सबसे पहला important या सबसे पहला जो, I will just explain students because the rest you can just see in the textbook and you will be able to understand. बहुत ही easy है. इनफैक्ट कुछ ये ऐसे principles है जो आप अपने own words में भी लिखोगे तो भी इट विल बी फाइन. ऐसा कुछ नहीं कि वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक का है, बहुत ईजी लैंग्वेज है ये, और टेक्स्ट बुक में भी बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. नाउ व्हाट डज डिवीजन ऑफ वर्क से? डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स दैट द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल सेज दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द वर्कर्स एंड द पर्सन हु इज फिट फॉर इट, और जिसको जो काम बहुत अच्छे से आता है, हु स्पेशलाइज, हु इज एन एक्सपर्ट इन इट, उसको वो काम दीजिए. या तो फिर एक पर्सन को एक ऐसा काम दीजिए जिसमें वो बार बार वो काम करने से एक्सपर्ट बन जाए और उसकी उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाए. ओके, सो दैट इज व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क. ऐसा
सिस्टमैटिक वे से वर्क को डिवाइड कीजिए अमंग द एम्प्लॉइज, उनके स्किल और उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको काम दीजिए. दैट इज व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क. Second is authority and responsibility. Yes. In every organization, there has to be an authority and there has to be a responsibility of someone. Okay, like for example, workers है तो workers के ऊपर एक manager होना चाहिए, उसकी authority होनी चाहिए, और responsibility workers की होगी कि वो अपना काम करके जो manager है उसको अपना follow up दे, उनको अपना उनके जो भी ऑर्डर्स है उसको फॉलो करे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन यही नहीं, मैनेजर की अगर अथॉरिटी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है टू सी दैट द वर्कर्स आर कंप्लीटिंग देयर वर्क ऑन टाइम. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर की सिर्फ अथॉरिटी नहीं बनती है, पावर नहीं है सिर्फ, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. सो दैट इज व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड, very important, discipline. Okay, if you want your organization to work smoothly, if you want your organization to grow, if you want your organization to progress, then there should be some kind of discipline in the organization among the workers. अगर discipline नहीं होगा, if there is no discipline, there is no rule, nothing. कभी भी कोई भी आ सकता है ऑफिस में, जल्दी जाना हो तो जा सकता है. ओके, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जब चाहो तब लीव ले लो. ऐसा अगर काम होगा, दिस इज टोटल इनडिसिप्लिन. ओके, और इस तरह से तो मैनेजमेंट भी आप नहीं कर पाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी इट विल बी टोटल कियोस इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर शुड बी सम डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट डिसिप्लिन हैज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू द एम्प्लॉइज. द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट द मैनेजर और जो एम्प्लॉइज है, ओके, तो एम्प्लॉइज को जो इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, ओके, वो एक जन से मिलना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं हो कि वर्कर्स को, देखो कभी कभी क्या होता है, वर्कर्स को सपोज जरा सेट ऑफ वर्कर्स, तो एक मैनेजर आके बोलता है नहीं ये काम करो, दूसरा मैनेजर आके बोलता है नहीं नहीं ये नहीं ये काम करो, तीसरा आके बोलता है ये नहीं ये काम करो. अरे इस तरह से इतने सारे मैनेजर्स होंगे और इतने ही एम्प्लॉइज के सामने इतने सारे अगर ऊपर मैनेजर्स होंगे तो किसका काम करेंगे. सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ जो कमांड मिल रही है, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, दैट ऑर्डर शुड कम फ्रॉम वन पर्सन. ओके, सो वर्कर्स शुड फॉलो, मतलब वर्कर्स ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किसका फॉलो करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड. और यूनिटी ऑफ कमांड के साथ साथ देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. दैट मीन्स व्हाट, गिव द डायरेक्शन प्रॉपरली एंड वन पर्सन शुड गिव द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज, ओके, इन वन टाइम. ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन में पहले आपने एक बोला ये करो, उसके बाद नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसे करो, फिर तीसरी बार आके बोलते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो. या तो फिर मैनेजर्स जो है बार बार आके बोलते हैं, एक मैनेजर आके बोलता है कि ये काम इस तरह से करना है, दूसरा मैनेजर आके बोलता है नहीं नहीं ऐसे क्यों किया, ये नहीं इस तरह से थोड़ी करना था, यू शुड हैव डन दिस वे, डू दिस वे. तो इस तरह से अगेन देयर विल बी chaos. So there should be unity of command as there should be unity of direction. Okay, these two are important for 2 marks and students. The next is subordination of individual interest to general interest. देखो जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में ना उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे आर वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, बिकॉज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब जो एम्प्लॉइज है, दे वांट टू गेट पेड मोर. ओके, दे वांट टू वर्क, नो प्रॉब्लम, ऐसा काम पे वो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा काम करे और पेमेंट कम मिले. और जो एम्प्लॉयर्स है उनको क्या लगता है कि हम कम टाइम में कम सैलरी दे के बहुत ज्यादा काम करवाए. तो ये जो दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट निकलना चाहिए. So for both employee and employer have to build that kind of relation wherein the employee should feel कि हाँ we are getting paid as much we are working, and the employer should also feel कि हाँ मैं बराबर से दे रहा हूँ और मेरा काम भी बराबर से हो रहा है. There is achievement of my objectives and so I should be paying very well to my employees. So there should be a support and even the employees should feel
दे शुड, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए नहीं मैं तो भाई अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखूंगा, एम्प्लॉई हूँ मैं तो, मुझे क्या करना है, कंपनी को जो करना है करे भाई, मैं अपना काम करूंगा और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी का कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा अगर दे शुड फील फॉर द कंपनी, दे शुड फील दैट लॉयल्टी फॉर द कंपनी। So for that also the company has to play an important role. Management should play an important role. उनको वर्कर्स को ये फील कराना पड़ेगा कि दिस इज योर कंपनी ओनली। okay, so that's why there is subordination. That's what it means, that you should make the वर्कर्स को इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़कर जनरल और कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। ओके, सबॉर्डिनेशन ऑफ, और मतलब पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बट येस दे शुड फील फॉर द कंपनी ऑल्सो। okay, so that is what is subordination of individual interest to general interest. Remuneration of personal. Okay, now what is the meaning of remuneration? First of all, let me make you understand this only. Okay, what is remuneration, students? Salary is given to employees, wages is given to factory workers. What is remuneration? Remuneration का मतलब ये हुआ कि सैलरी के साथ जो जो आपको मिलने वाला है पूरा पैकेज। ओके, सैलरी मिलेगी, फिर पीएफ, पेंशन, जो भी आपको पूरा आपको जो भी मिलने वाला है पैकेज। ओके, अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है, अगर आपको कोई एलटीसी मिल रहा है, मतलब आप कहीं हॉलिडे पे जाओगे तो भी आपका खर्चा ये बेयर किया जाएगा, तो ये पूरा एक पैकेज बोलते हैं उसको। ओके, सो दैट इज व्हाट इज रेम्यूनरेशन। नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज। ठीक है, तो जो भी रेम्यूनरेशन है, राइट रेम्यूनरेशन और राइट सैलरी, राइट बेनिफिट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज। उनको काम के हिसाब से, उनके पोजीशन के हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। सिर्फ पैसों की जरूरत, ऐसा नहीं है कि लोग पैसों के बिना तो नहीं ये कर सकते, दे वांट मनी। ओके, एंड इफ यू आर पेइंग देम एंड द एम्प्लॉय फील्स दैट नो आई एम पेइंग लेस, मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो छोड़ के भी चला जाएगा। ओके, इफ ही इज नॉट हैप्पी with his pay and all. So according to the performance of the workers, give them good remuneration. That's what the principle says. Okay, so here actually I have completed 7 principles, students. The rest 7 and the other part of the chapter I will be taking in the next lecture. ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सारे प्रिंसिपल्स एक साथ में कराऊंगी तो। अब ये 7 जो प्रिंसिपल्स है इसका हम एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। ओके, फाइन, गॉट इट। सो हियर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी वर डूइंग, राइट। यहाँ पे मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योम। ये रहा, ठीक है। सो हियर ये बहुत ही इजी तरह से है स्टूडेंट्स, इसमें से आपको सिर्फ 2 पॉइंट बना के यू कैन ऑलवेज राइट, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें से 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बाकी के जो इतने भी प्रिंसिपल्स है, दिस आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड इसके आगे का भी हमारे बाकी है, न्यू क्लासिकल थियोरी एंड ऑल, that I will be taking up in my next lecture. Okay, thank you students, thank you for watching my video. Please everyone subscribe to my channel. I'm getting the views, but many students are just seeing the videos but they are not subscribing, so please subscribe to my channel also if you're liking my videos. Thank you everyone.